Assalamualaikum students, how are you all? This is Oxford Academy School. This is your computer subject of grade 4. Students, we are starting our final term syllabus. First of all, you have to make a title page of final term in your CW copy. Then we will start our first chapter, computer hardware and software. In this chapter, you will learn meaning of hardware and software, meaning of the term packages, concept of input and output devices and CPU. Hardware and software. The parts of the computer that you can see and touch are called hardware. Some examples of hardware are mouse, keyboard, printer, plotter, monitor and CPU. The programs or instructions that make the computer perform different tasks are called software. These programs are written a particular language such as BASIC, COBOL, Fortran, and C++. The hardware of a computer is useless unless appropriate software is not available to perform different tasks. Similarly, software cannot run without hardware. Therefore, software and hardware are completely interdependent on each other. Development of language. A computer only understands one language, which is machine language. The machine language is written in a code known as the binary code. In binary code, only two digits 0 and 1 are used to write instructions. The digits 0 and 1 are used in different combination to make up instruction in machine language. In first generation computer instruction were given in machine language. Writing of programs was very difficult at that time. By the time second generations computers were developed, assembly language had also been developed. Programming became a little easier with assembly language. The instructions written in assembly language are converted to machine language using another program called the assembler. It converts the instruction to binary code. The development of third generation was accompanied by the development of many programming languages which are used even now. In these languages, instructions are written in language very similar to English. They are known as high-level language and or HLL. The computer requires an interpreter to convert these instructions to HLL to machine language. Logo, BASIC, Fortran, COBOL, Pascal are examples of high-level languages. Fortran stands for Formula Translation. BASIC stands for Beginner All-Purpose Symbolic Instruction Code. COBOL stands for Common Business Oriented Language. इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और उनको टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। हार्डवेयर की सम एग्जांपल्स ये हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर एंड सीपीयू। और जो हम प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं कि ये परफॉर्म करना है टास्क, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स ये हैं सॉफ्टवेयर को इन लैंग्वेजेस में लिखा जाता है बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रैन एंड C++। वो जो हार्डवेयर है वो कम्प्लीटली यूज़लेस है, बेकार है, जब तक हम उसमें एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर उसमें कंप्यूटर में ना डालें कुछ काम करने के लिए। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हमारे पास हार्डवेयर नहीं है तो भी कंप्यूटर हमारा टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। हमें क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे पर दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर को टास्क परफॉर्म करने के लिए। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरों के ऊपर। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है जो कि मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज एक कोड में लिखी जाती है जो कि होता है बाइनरी कोड। बाइनरी कोड में हम लोग 2 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं 0 एंड 1 और इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए। और जो 0 एंड 1 डिजिट्स हैं वो दोनों कॉम्बिनेशन बनाता है इंस्ट्रक्शन के लिए, मशीन लैंग्वेज को रिटर्न करने के लिए।
मशीन लैंग्वेज में मतलब लिखा जाता है ना कंप्यूटर को, तो वो इंस्ट्रक्शन मतलब कोडिंग में लैंग्वेज लिखता है कंप्यूटर। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमने मशीन लैंग्वेज को एक इंस्ट्रक्शन दे दी थी, टास्क दे दिया था कि आपको ये करना है, कंप्यूटर को ये काम करना है, लेकिन उसने काम तो कर लिया था, लेकिन राइटिंग ऑफ जो प्रोग्राम था ना वो बहुत फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा मुश्किल था। जब सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी तो हमने कंप्यूटर्स बहुत सारे डेवलप हो गए थे और असेंबली लैंग्वेज भी डेवलप हो गई थी। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज में लिखना बहुत आसान हो गई थी और हम लोग इंस्ट्रक्शन असेंबली लैंग्वेज को देते थे जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, और दूसरी लैंग्वेज जो कि असेंबलर कहलाती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसानी हो जाती थी और इंस्ट्रक्शन को बाइनरी कोड में कन्वर्ट खुद ब खुद कर लेता था। थर्ड जनरेशन में और बहुत सी इजादात हुई थी और बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी डेवलप हुए थे जो कि हमारे लिए बहुत आसानी पैदा कर रहे थे और वो आज भी यूज़ होते हैं। और बहुत सारी मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते थे और जो आजकल भी इस्तेमाल हो रही है, जो कि इंग्लिश से बहुत सिमिलर है और जो कहलाती है हाई लेवल लैंग्वेज, इन शॉर्ट फॉर्म HLL। कंप्यूटर जो है वो इंटरप्रेटर को रिक्वायर करता है क्योंकि तो कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन को, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटर। जैसे एग्जांपल है लोगो, बेसिक, फॉर्ट्रैन, कोबोल, पैस्कल। ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। फॉर्ट्रैन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। बेसिक की फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। Beside these languages, which are used for programming, there are application software called packages. These packages consist of programs that allow you to perform specific tasks on a computer. They may be thought of as ready-made sets of commands which allow you to perform tasks conveniently. Users are saved from giving complicated instructions to the computer every time. Some of the commonly used application software packages are Microsoft Word, Database, Lotus, Excel, etc. Input and output device. The device used to enter instruction and codes into the computer is called input device. The examples of input device are mouse, keyboard. The joystick is another example of input device. और इसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती थी, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाती हैं? पैकेजेस जो है वो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम पैकेजेस होते हैं, वो हमें स्पेसिफिक टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करने के लिए कहता है। और जैसे हमारे पास कमांड्स होती है वो हमें अलाउ करती है कि टास्क परफॉर्म करें कन्वीनियंटली, और जो यूज़र्स हैं वो सेव्ड हो जाते हैं फ्रॉम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एवरी टाइम। और जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग कंप्यूटर में राइट करते हैं वो कंप्यूटर में अगर हम सेव करेंगे तो हम लोग जब भी उसे खोलें तो वो खुल सकती हैं, किसी भी वक्त खोल सकते हैं हम लोग उससे। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो MS वर्ड है, डेटाबेस है, लोटस है, एक्सेल है। ये सारी एग्जांपल्स हैं लैंग्वेजेस की। मतलब हम लोग इसमें कुछ भी हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई एप्लीकेशन बना ली, वो हम लोग एक्सेल में, वर्ड में, MS DOS कमांड में, डेटाबेस में, लोटस में हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग उसमें लैंग्वेजेस को टाइप कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं हम लोग उसमें। और जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस और कोड लिखते हैं कंप्यूटर में, जो कि कहलाती है इनपुट डिवाइस। जैसे और इनपुट डिवाइस की एग्जांपल है माउस और कीबोर्ड। माउस से हम लोग क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से हम लोग टाइप करते हैं। और जॉयस्टिक है वो इसकी अनदर एग्जांपल है इनपुट डिवाइस की। The device used to show the result on the computer is called an output device. Some examples of output device are the printer and plotter. A printer allows you to print on paper whatever you have typed on the computer. There are several types of printers such as dot matrix printer, daisy wheel printer, inkjet printer, and laser printer.
Central Processing Unit. The most important component of the computer is known as CPU. It accepts instructions through input device, store them in memory, and execute them through output device. It is known as the brain of the computer. और जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है वो क्या होती है, जो हमें रिज़ल्ट शो करती है। और जो हम अगर आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल्स देते हैं तो प्रिंटर है, प्लॉटर है। प्रिंटर हमें पेपर पे प्रिंट करके देता है। और प्रिंटर की बहुत सारी टाइप्स होते हैं। और कुछ भी हमने वर्ड में, एक्सेल में कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ हो, नोटपैड में कहीं भी लिखा हुआ, हम लोग उसको प्रिंट करवाना चाहें तो वो हमें प्रिंट करके दे सकता है। प्रिंटर की टाइप्स हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हील है, इंकजेट प्रिंटर है एंड लेज़र प्रिंटर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि है सीपीयू। सीपीयू है मतलब सीपीयू हमें इनपुट डिवाइस को एक्सेप्ट करता है, वो उसको सीपीयू उसको स्टोर भी करता है इनटू मेमोरी। और हमें मतलब जब भी उसे हम देखना चाहें वो हम उसे फ़ाइल हम लोग सेव कर लेते हैं कंप्यूटर में। और जब भी हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास हमारी पुरानी फ़ाइल ओपन हो जाती है। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। Okay students, I hope you will understand this chapter very clearly. Thank you for listening. Allah Hafiz.